Hello dear students, today we will learn multiplication of integers. Multiplication is simply repeated additions and multiplication of integers can also be shown on the number line. Multiplication of positive and negative integer if we consider. Let's have a number line and suppose we have numbers like पॉजिटिव इन द केस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर अगर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो और उनको मल्टीप्लाई करना हो तो हम नंबर लाइन की हेल्प ले लेते हैं और यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब मान लो कि हमें 4 टाइम्स 2 करना है। 4 टाइम्स 2 दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स है तो हमें क्या करना है 2 को 4 टाइम्स करना है तो 1 2 2 का जंप लेते चलेंगे हम 1 देन अगेन 2 numbers again 2 numbers and again 2 numbers after taking the gap of 2 4 times we have reached on a number 8। so जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे द प्रोडक्ट विल बी when we multiply two positive integers the product will be a positive integer। now let's see in the case of negative integers। अगर हमारे पास integers नेगेटिव हो कोई भी एक इंटीजर नेगेटिव हो तो हम कैसे उसको मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज वी हैव -2 4 इंटू -2 ये एक इंटीजर है जो -2 है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे -2 का गैप लेंगे 4 टाइम्स। ओके हियर वी हैव 0 -1 क्योंकि नेगेटिव नंबर है हमारे पास -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। okay we will take the gap of -2 numbers means we will move in the left hand side। so this is the gap of -2 again the gap of -2 2 times 3 times and 4 times। on the fourth time we have reached on number -8। okay to find 4 into -2 we can first find 4 into 2 which is equal to 8 and then put minus sign before the product to get -8। thus 4 into -2 will be equal to -8। okay in this way we will get to multiply a positive integer with and a negative integer we multiply them as a natural number and put a minus sign before the product so obtained। the product of positive and negative integer is also a negative integer। अगर हम दो जनरल नंबर ले लेते हैं कोई भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर तो उनका जो प्रोडक्ट होगा कैन बी रिटन लाइक दिस। अगर हम a एंड b दो नंबर लेते हैं a पॉजिटिव इंटीजर है और b जो है नेगेटिव इंटीजर है तो इनका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी a into b and product will have negative sign। like if we multiply 3 with -5 एक पॉजिटिव इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर है तो इनके प्रोडक्ट जो आएगा नेचुरल नंबर लेते हैं 3 एंड 5 इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 15 और आगे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ऐसे इनका प्रोडक्ट करेंगे when one is positive and one is negative। okay now we will multiply two negative integers। suppose we have two negative integers like -a and -b। okay both the numbers are negative। the product of negative two integers is a positive integer। to multiply two negative integers we multiply them as a natural number and put the plus sign before the product। for any two positive integer a and b
माइनस ए इंटू माइनस बी विल बी ए बी। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के पास नेगेटिव साइन है, इन मल्टीप्लिकेशन वी विल not write the sign of minus there. Okay, so we can sum up the finding in the following rules. The product of rule number 1 is the product of two integer with like signs is equal to the product of their absolute value with the positive sign. मतलब क्या है रूल नंबर 1 का? बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये। इंटीजर जब भी हम नंबर पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स के साथ डील करेंगे, हमें ये रूल्स अच्छे से आने चाहिए। बच्चों को ये रूल पता नहीं चलते, उनके आंसर्स गलत हो जाते हैं, इस वजह से उनको मैथ्स भी फिर बाद में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं। उनको लगता है कि 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, जो कि -2 होना चाहिए था, जिस वजह से उनका पूरा किया हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। और एक बार क्वेश्चन गलत हो जाता है तो बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है, तो उसको उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होगी जितना वो नेगेटिव हो चुका है। तो इसलिए आपको रूल्स का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। मैं रूल्स लिखता हूं। रूल नंबर 1, पहला रूल जो है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विद लाइक साइन, you can also write in the notebook the this is rule number 1. The product of two integers a and b, integers with like sign, is equal to the product of their absolute values with positive sign। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा रूल नंबर 1। तो बच्चों यहाँ पे मैंने बोला है कि लाइक साइन, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर का प्रोडक्ट, ये फर्स्ट इंटीजर है जो पॉजिटिव है, और ये सेकंड इंटीजर है जो अगेन पॉजिटिव है। इनका प्रोडक्ट मतलब इनको मल्टीप्लाई करना। दोनों के साइन आप देख सकते हैं सेम है, क्योंकि मैंने दोनों ही प्लस में लिए हैं। ये किसके इक्वल होगा इनका प्रोडक्ट? देयर प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 24। ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में था, और आंसर भी किसमें है? प्लस में है। देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज जो है वो लिखी है हमने, और उनके साथ जो है पॉजिटिव साइन है। देखो ये तो प्लस की बात होगी। अगर हम मल्टीप्लाई करें -4 मल्टीप्लाइड विद -6, देखो इनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं वो ले लेते हैं। 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? आई होप कि आपको याद हो। जब हम वर्टिकल लाइंस में -4 को लिखेंगे तो ये 4 बन जाएगा, और इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4। तो जब हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे और उनका प्रोडक्ट प्लस साइन में लिखेंगे, वो इसका आंसर होगा। 4 6 are 24, और इसे प्लस में लिखा जाएगा। हम साइन नहीं देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इनके जो साइन है ये माइनस साइन है। यहाँ पे कितने भी जो नंबर्स हैं वो आ सकते हैं इनके साथ। मतलब अगर मैं लिखूं -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ओके, ये सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर हैं। क्योंकि ये नेगेटिव है, सबके साइन लाइक हैं, तो हम इनको चेक करेंगे कि ये कितने टाइम्स आ रहे हैं। अगर ये इवन नंबर टाइम्स आ रहे हैं, लाइक यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये ओड नंबर टाइम्स है, तो हम माइनस साइन लिखेंगे, अदरवाइज हम
साइन नहीं लिखेंगे। इसके बारे में हम नेक्स्ट रूल में डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन वी विल डिस्कस दीज रूल्स। ओके, तो अब हम आफ्टर फर्स्ट रूल मूव करते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। हमने अभी सीखा कि अगर प्लस साइन हो या माइनस साइन हो, दोनों के दोनों नंबर्स में इनका जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव में आएगा। दोनों ही प्लस में तब भी प्लस में, दोनों ही माइनस में मल्टीप्लाई किए गए तब भी प्लस में आंसर आएगा। दिस वाज रूल नंबर 1। नाउ रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 देखते हैं क्या है हमारा। रूल नंबर 2 इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विद अनलाइक साइन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज विद नेगेटिव साइन। सेम यही है, बस हमने क्या बोला है कि अब जो इनका आंसर आएगा वो नेगेटिव साइन में आएगा। मींस द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स two two integers with unlike sign is equal to the product of their absolute values। absolute value वही, उनके साइन के बिना अगर हम मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव में ले नेगेटिव नंबर्स को भी, विद माइनस साइन और नेगेटिव साइन। This is rule number 2. According to this rule, if we multiply 4 with -9 और इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज लिखे 4 इंटू 9, ये इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज होगी। एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है, दोनों ही सेम नहीं है, तो इन्हें अनलाइक बोला जाएगा, अनलाइक साइन। और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके प्रोडक्ट के आगे माइनस लगाना होगा, तो दिस विल बी -36। ये -9 इंटू 4 के केस में भी यही होगा, आगे पीछे लिख सकते हैं तब भी माइनस साइन आएगा। तो यहां से बच्चों हमें क्या पता चला, हमें ये 4 रूल पता चले कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस multiply with plus, we will get plus. When we will multiply negative integer with negative integer, we will get positive integer. The product will be positive. And third rule is when we multiply a positive integer with negative integer, we will get negative integer, product in negative sign. When we multiply a negative integer When we multiply a negative integer with a positive integer, again because of unlike sign, we will get the product with negative sign. नेगेटिव साइन के साथ हमें प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा। ये थे हमारे कुछ बेसिक से रूल जो मल्टीप्लाई करते हुए हमें ध्यान में रखने हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी प्रॉपर्टीज, हमें एज लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो हमने अभी तक सीखी हैं वो देखेंगे हम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन से शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। So as like addition and subtraction, again we have the first property, that is closure property. I hope कि आपको अभी तक closure जो property है वो अब तक याद हो गई होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या बात की थी कि जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो उनका सम इंटीजर आता है। दो इंटीजर्स का डिफरेंस फाइंड करें तब भी जो डिफरेंस है
वो इंटीजर आता है। अब मल्टीप्लाई में भी सेम होगा, जब हम दो इंटीजर्स लेंगे a एंड b, उनका जो प्रोडक्ट होगा ए बी, दैट विल ऑल्सो बी अ इंटीजर, वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ओके, वो एक ऐसा नंबर होगा जो प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 6 एंड 5, इनका प्रोडक्ट आया 30। 6 क्या है, प्लस का नंबर है, 5 क्या है, प्लस का नंबर है, 30 क्या है, वो भी प्लस का नंबर है। तो प्लस के नंबर को इंटीजर बोलते हैं, माइनस के नंबर को भी इंटीजर बोलते हैं। अगर प्लस का आ गया तब भी इंटीजर, माइनस का आ गया तब भी इंटीजर ही होगा। ओके, तो अगर मैं -2 मल्टीप्लाई 3 करूं तो आंसर आएगा -6। अभी हमने सीखा कि अनलाइक साइन को मल्टीप्लाई करते टाइम हमें माइनस लिखना है, तो माइनस का नंबर आया तो ये नेगेटिव क्या है, इंटीजर ही है। ओके, नेगेटिव भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी का कहना था। अब हमने क्लोजर प्रॉपर्टी कर ली, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंड दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 2, commutative property. Okay, according to commutative property, we have learned this property in addition and subtraction also, but in subtraction we can't use commutative property. ये property subtraction में काम नहीं करती है, but in the case of addition and multiplication it will work only in these two cases. एडिशन करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तब हम इसको यूज में ले सकते हैं। बट अगर आप सोचो कि आप इनको माइनस करें दो इंटीजर्स को, तो थर्ड जो है वो भी आपका इंटीजर आए, तो ऐसा जरूरी नहीं है। शायद ये उसमें काम करती है इन सब्ट्रैक्शन, बट इन द केस ऑफ डिवीजन इट मैटर्स। ओके, तो हम चेक करते हैं अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें एंड अगर उनका ऑर्डर चेंज करें, इफ वी मल्टीप्लाई a into b and if we change their order, the product will be same, उनका जो प्रोडक्ट है वो सेम होगा। और ऐसा हमने देखा था कि अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज कर लें सब्ट्रैक्शन में, तो सब्ट्रैक्शन में जो इंटीजर्स हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। ओके, तो अगर मैं दो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर लूं 3 into 2 और इनका ऑर्डर चेंज कर दूं, ऑर्डर चेंज करने का मतलब मैं 2 को बाद में जो लिखा था पहले लिख दूं, तो इनका जो आंसर होगा, प्रोडक्ट होगा, दोनों का ही 6 आने वाला है। ओके, अगर मैं -5 into 4 करूं और -5 की जगह पे अब मैं लिखूं 4 into -5, तो जो आंसर है वो सेम आने वाला है। कैसे? आप देख सकते हैं दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू को इनटू करेंगे, 4 5 20, अनलाइक साइन है तो माइनस आएगा। सेम यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यूज को इनटू करेंगे और माइनस साइन लगाएंगे, दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि दे आर ओबेइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मींस व्हेन वी विल मल्टीप्लाई द इंटीजर्स वी कैन चेंज देयर ऑर्डर, आगे पीछे लिख दें तो वो गलत नहीं होगा, वो सही होगा, उसका आंसर आएगा। ओके, वो भी एक इंटीजर ही होगा और कम्यूटेटिव में सेम आंसर होगा। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एंड थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी, मैं आपको वापिस से रिमाइंड करवा देता हूं। हमने ये प्रॉपर्टी एडिशन में सीखी थी। एसोसिएटिव में एसोसिएट करना, हमारे पास तीन नंबर्स हैं, मान लो ए बी सी। ओके, ए बी सी तीन नंबर है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इफ वी मल्टीप्लाई फर्स्ट टू नंबर and we multiply the product of first two with the third number, or we change the order, we multiply the last two numbers and multiply the product of last two number with the first number, their product will be same, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थ्री इंटीजर्स विल बी सेम, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो सेम ही होगा, चेंज नहीं होगा।
नंबर एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं लिखूं यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -2 विल बी इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 4। मैंने यहाँ पे इनका ऑर्डर चेंज कर दिया है और बाद में इनको 2 से इंटू करेंगे। देखो ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व किया जाता है, ब्रैकेट के अंदर ये इंटीजर्स लिखे हैं, पहले इन्हें सोल्व करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट 2 को पहले सोल्व करेंगे। तो क्या होगा ऐसा करने पे, देखो दोनों ही इंटीजर क्या है, नेगेटिव है। अगर दोनों ही इंटीजर नेगेटिव है इसका मतलब क्या है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, सेम साइन होने की वजह से इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव में आएगा। और पॉजिटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है, 4 को 2 से इंटू करेंगे, 4 2 आर 8 तो यहाँ पे +8 आ जाएगा। ओके, एंड 8 7 आर 56, यहाँ पे आ गया 56। अब दूसरी ओर देखते हैं। देखो हियर द नंबर्स आर इन अनलाइक साइन, इनके जो साइन है वो सेम नहीं है, जैसे ये प्लस में है और ये माइनस में है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अनलाइक साइन इंटीजर्स ऑलवेज इन नेगेटिव साइन, आंसर जो आएगा, प्रोडक्ट जो आएगा वो नेगेटिव साइन में होगा। 7 4s are 28 and now we will multiply 28 with -2। Here you can see both the integers have a negative sign, means they have like sign, and we will multiply their absolute values। first 28 को 2 से इंटू करके 56 लिख सकते हैं, and because they have like sign we will write plus, and here you can see both the products are same, this means they are following associative property। यहां से हमें क्या पता चला है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। like this we will move to our next property। ये जो आगे की तीन प्रॉपर्टीज हैं ये हमने एडिशन में सब्ट्रैक्शन में नहीं की थी, क्योंकि उनमें ये सभी फेल हो जाती हैं, उनको ओबे नहीं करती, तो इसलिए हमने वहां पे इनको यूज नहीं किया था। बट यहाँ पे in the case of multiplication and addition we will learn the other properties also, and now we will move to our fourth property, that existence of multiplicative identity। कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस है, मतलब क्या है इसका, इफ a is any integer it can be positive or negative, and a multi product of a with 1 will be equal to the number a। अगर a को 1 से इंटू करें तो प्रोडक्ट जो होगा वो a ही होगा। अगर मैं 5 को इंटू करूं 1 से, आइडेंटिटी मतलब 1 इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, 1। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, 0। ध्यान रखना आपको, मतलब कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अब देखो 5 को 0 से अगर इंटू करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ये तो आइडेंटिटी नहीं हुई। ओके, 5 को 0 में ऐड करें तो वो 5 रहेगा, सेम वैल्यू जब रहे उसे आइडेंटिटी बोल देते हैं, चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 1 से इंटू करने पे उसकी वैल्यू सेम रहती है, तो इसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। 5 1s are 5, if we multiply -5 with 1 again we will have -5। देखो जिस नंबर से इंटू कर रहे हैं 1 को वही आंसर आ रहा है, इसे बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। okay, this was our fourth property। now we will move to the property of zero। property of zero, in the case of multiplication of integers, when we multiply any integer with a with 0 we will get
जीरो एज अ प्रोडक्ट एंड दिस इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ये जीरो की खासियत है कि उसके साथ जब भी किसी भी इंटीजर को पकड़ के मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका आंसर जो है वो जीरो ही आएगा। इधर यू विल मल्टीप्लाई 10 लाख और 10,000 विद जीरो तो प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज इफ ए बी सी आर थ्री इंटीजर्स, अगर हमारे पास तीन इंटीजर्स हैं जो ए बी सी तीन अलग अलग हैं, वहां पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। मतलब क्या होगा इसका, इफ वी मल्टीप्लाई अ इंटीजर विद द सम ऑफ टू इंटीजर्स, ये सम है दो इंटीजर्स का, इस सम को इंटू करें किसी थर्ड इंटीजर के साथ, तो यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट नंबर से विच इज included in the sum and we will multiply the number with the second number which is included in the sum। तो a को पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा b के साथ, और अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अगर यहाँ पे प्लस साइन है, ओके, तो प्लस में लिखते हैं a इंटू सी। अगर माइनस साइन है तो इसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। अब कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। मान लो कि अगर मेरे पास नंबर है 3 और इसे इंटू करना है 2 प्लस 5 से, ओके, तो मैं क्या कर सकता हूं, आई विल मल्टीप्लाई 3 विद 2, then I will put the plus sign, then we will multiply 3 with 5, 3 2s are 6 plus 3 5s are 15, and after adding these two integers we will get the sum equal to 21। सेम यहाँ पे 2 and 5 will be 7 and 3 into 7 will be equal to 21। So here you can see both sides are equal, which means this property is true for three integers. They can be positive, negative, or zero। Okay, so these were the properties which we have to follow when we are going to multiply। Okay, जब हम multiply करेंगे हमें इनका ध्यान रखना है। तो चलो कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, इनके प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। देखो 12 को 6 से इंटू करना है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो पहले तो हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को इंटू करेंगे, 6 को 12 से इंटू करेंगे, एंड दे आर हैविंग अनलाइक साइन। देखो एक प्लस का एक माइनस का, तो बाहर माइनस लिखना है। 6 7 आर कितना, 12 6 आर कितना होता है 72, तो हम -72 लिखेंगे यहाँ पे। ओके, तो दिस वाज द आंसर, and now we will move to the next question। In the next question we have learned a property where we were talking that कि जब भी हम जीरो को इंटू करेंगे इंटीजर्स के साथ, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, जीरो ही आ जाएगा, जीरो ही आएगा प्रोडक्ट। ओके, सबको देखो 192 को जीरो से इंटू किया जीरो, और फिर -132 को भी जीरो से इंटू किया, वो भी एक इंटीजर है, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। ओके, एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। आप यहाँ पे अगर ध्यान दो तो ये नंबर जो है 2 बार लिखा गया और बीच में माइनस है। अगर हम इस नंबर को a मान लें तो यहाँ पे a लिखा जाएगा, बीच में माइनस हो गया, और यहाँ पे ये नंबर अगर b मान लिया जाए और ये नंबर थर्ड नंबर c मान लिया जाए, तो ये तो प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस की थी पहले। क्या किया था वहां पे, a ब्रैकेट
बीच में माइनस का साइन और बी एंड सी यहाँ पे। तो ये तो प्रॉपर्टी आपको शायद ध्यान हो, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बात की थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। तो हम ऐसे ही लिखेंगे इनको, हम इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करके माइनस नहीं करेंगे, हम इनको ऐसे यूज करेंगे। तो क्या करना होगा, we will write 3276 bracket 3 minus 2 and 3 minus 2 is 1 and 1 से इसे into किया, this will be 3276, this will be the answer। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, देखो यहाँ पे हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। पहले इन दोनों नंबर का फाइंड कर लेते हैं और नेक्स्ट इन दोनों नंबर्स का फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट। तो हम इन्हें करते हैं थोड़ा सा एक्सपेंड। ओके, तो हियर you can see we have both the numbers in a negative sign, दोनों ही लाइक हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और इनके बाहर कौन सा साइन लिखेंगे, प्लस साइन। इनटू ये भी सेम है तो 7 इंटू 2 लिखा जाएगा, 5 1 जार 5 इंटू 7 2 जार 14 एंड 14 को अगर 5 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 70। अगर आपको समझ आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, अदरवाइज ध्यान से देखें। हम पहले दो नंबर को एंड लास्ट दो नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर और साइन चेक करेंगे, अगर तो दोनों के साइन लाइक हैं तो कोई साइन नहीं लगाएंगे, अगर अनलाइक है तो माइनस साइन बाहर लगाएंगे। देखो 6 प्लस में था, 5 माइनस में था, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक साइन है, माइनस बाहर आएगा। इनटू देखो यहाँ पे हमारे पास 5 है एंड यहाँ पे हमारे पास 2 है, दोनों ही लाइक साइन में है, दोनों ही माइनस में है, तो हम यहाँ पे इनको प्लस साइन में लिखेंगे, मतलब इनका साइन ही नहीं लगाएंगे। ओके, नाउ वी हैव 30 एंड 10, 30 मल्टीप्लाई बाय 10 और ये 30 का साइन क्या था, माइनस, क्योंकि बाहर माइनस था। अब देखो अगेन वी हैव नेगेटिव साइन एंड पॉजिटिव साइन, मतलब कि इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को अंदर लिखेंगे और बाहर लगाएंगे माइनस, और इनटू करके कितना आ जाएगा 300। ओके, और यहाँ पे हम एक और शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, वो कैसे, देखो बच्चों, अगर मैं बोलूं कि जब आपके पास मल्टीप्लाई में ऐसे इंटीजर्स दे रखे हो तो आप माइनस के पेयर्स को कट कर सकते हैं, मतलब ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो जब कट गया तो आंसर में जो है वो प्लस साइन ही आएगा। ऐसा ही यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, देखो ये पेयर एक पेयर बन गया, माइनस से माइनस कट गया, इसका पेयर नहीं बना, जिसका पेयर नहीं बनता है तो वो माइनस साइन साथ में आता है, देखो ये साथ में आया। ऐसा ही नेक्स्ट में देखो माइनस से माइनस कट गया, तो अब जो है इनका जो साइन है माइनस का नहीं आएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 को 20 से पहले इंटू करेंगे, अब जैसे कि हमें पता है कि इनका साइन नहीं आएगा माइनस का, तो हम साइन लगाएंगे ही नहीं। ओके, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 123, मैं साइन बिना लिखे इनको कर रहा हूं, 20 को 5 से इंटू करके आता है 100 और 123 से इंटू करके आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 12,300। ऐसे हम इसे सोल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एक ही माइनस साइन है, इसका पेयर नहीं बन रहा तो हम माइनस साइन लगाएंगे। 12 को 5 से इंटू करेंगे जो आएगा 60 और उसे 12 से इंटू करेंगे और 12 6 आर 72 और साथ में लग जाएगी 0, तो ये प्रोडक्ट आएगा इनका। ऐसे हम इनको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वेरीफाई करना है क्वेश्चन को, क्या इनका आंसर सही है और क्या आंसर आता है इनका। ओके, यहाँ पे शायद क्वेश्चन आगे पीछे हो गए। ये क्वेश्चन हम दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वेरीफाई बाद में करेंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि कंसीडर, यहाँ पे ये 2 बार आया है, बीच में प्लस साइन है,
इसे ए मान लें, इसे भी ए मान लें, तो ये जो 1 एंड 99 है ये क्या होगा बी और ये क्या होगा सी, और बीच में प्लस साइन आएगा। तो हम क्या करेंगे ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट बी प्लस सी, यहाँ पे क्या लिखेंगे बी प्लस सी, ये हमारा आंसर आएगा अगर हमारे पास a इंटू बी एंड c इंटू ए था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे a लिखेंगे, a क्या है 8964, इसे मल्टीप्लाई करेंगे विद b जो 1 था, c जो 99 था। देखो ऐसे अगर इंटू करते तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता, बहुत टाइम कंज्यूम होता हमारा। अगर हम इनको ऐसे ही कर लें तो कितना आसान हो जाएगा। 1 में 99 ऐड किया तो वो 100 हो गया, 100 से इंटू करने पे 2 जीरो नंबर के पीछे लग गई। देखो कितना आसान हो गया। अब ये क्वेश्चन आप करके देखो, यहाँ पे अगर खाली नंबर ही है तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई 1 डाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये तो a हो गया हमारा 2314 इंटू ए में क्या आ गया 9 प्लस बी में क्या आ गया, देखो बी हमारे पास नहीं लिखा हुआ था, खाली ए लिखा हुआ था। तो इसको अगर 1 से इंटू करके लिख दें तो इसमें कोई फर्क डिफरेंस नहीं आने वाला, तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो 1 लिखने पे ये कितना हो गया 9 एंड 1 10, तो दिस विल बी 2314 इंटू 10, और 10 से इंटू करने पे इसके पीछे एक जीरो लग गई एंड नंबर इज 2340, दिस विल बी द आंसर, ये आंसर हो जाएगा। ओके, एंड दिस क्वेश्चन वेरिफिकेशन के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप कि आपको गाइज ये समझ आया हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क इन द कमेंट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब।